Children, today we are supposed to start the chapter number 2, that is acids, bases, and salts. This chapter is divided in 3 parts where we have to discuss about acids, then bases, and then about salts. And in the last category, we'll be discussing some important salts which we use in our daily life. So, first of all, we have to discuss that what are acids and bases. As we know that when you look around, you can see there are so many compounds in the nature, in the environment. About 3 million compounds are already known, and these compounds are identified on the basis of their characteristics, like उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं, उनका टेस्ट क्या होता है, उनकी स्मेल क्या होती है, एंड कलर क्या होता है, केमिकल बिहेवियर उनका कैसा होता है. सो ऑन दैट ऑल बेसिस वी डिवाइड और वी क्लासीफाई द कंपाउंड्स इन 3 classes, and those 3 classes are acids, bases, and salts. So first of all, we'll be discussing about acids and bases. Since very lower classes you are taught about acids and bases, so here I am going to discuss about, or I'll jot down some important points of acids and bases which will help you to distinguish between them. The first thing is, acids are sour in taste. Acids are corrosive to touch. Acids turn blue litmus red. And produces H plus ion in their solutions and good conductor of electricity. Examples, as we know, common acids are H2SO4, HCl, and HNO3. So like this you have many acids. So these are few points about acids. Sour in taste means वो टेस्ट में खट्टे होते हैं. आप जिन एसिड्स को, जो ईडेबल एसिड्स हैं, एंड ऐसे एसिड्स जैसे आजकल तो कोविड का काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है, एंड वी ऑल नो दैट विटामिन सी कि डॉक्टर कहते हैं कि टू इम्प्रूव और एनहांस दी इम्यूनिटी हम सबको विटामिन सी लेना चाहिए. विटामिन सी ऑल्सो कंटेन एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज़ वाई इट इज़ सार इन टेस्ट. इसके अलावा लेमन जूस हो गया, आंवला हो गया, कोई भी आप फ्रूट्स देख लो लाइक गुआवा, मैंगो, दे ऑल कंटेन लॉट ऑफ विटामिन सी, एंड दैट मीन्स दे कंटेन एसिड्स. Then they also produce H plus ion in their solution, means when they are added in water they release H plus ion, because when you see the formula of any acid like HCl, so you can see every acid have hydrogen in it, in front of it. ये देखो, ठीक है. सेम वे यू हैव HNO3, इसमें भी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है. तो जो हाइड्रोजन which is present in the acid get liberated in the form of H plus when they are dissolved in water. And the last point is they are good conductor of electricity, and these are some common examples. These are the examples also. And when you talk about bases, bases are bitter to taste or bitter in taste. Bitter means kadve. Like they are present in ginger, they are present in bitter gourd, हम उसको बोलते हैं करेला, और इनका जो टच होता है वो सोपी टच होता है. सोपी टू टच मतलब जब आप इनको टच करेंगे, जैसे आप कोई भी सोपी मटेरियल देखो, चाहे वो डिटर्जेंट है, सोप है, और इट इज़ द टूथपेस्ट,
any soapy material, shampoo, they all are actually bases. कोई भी soapy material जो होता है वो base होता है. They turn रेड लिटमस ब्लू. आई थिंक एवरी वन नोज़ कि हाँ, दो तरह के लिटमस होते हैं, ब्लू एंड रेड. तो ब्लू को रेड में टर्न करता है एसिड और रेड को ब्लू में टर्न करता है बेस. जैसे एसिड्स H प्लस प्रोड्यूस करते हैं, बेसिस प्रोड्यूसर्स OH माइनस आयंस इन देयर सॉल्यूशंस. उनके वाटर के सॉल्यूशन में वो OH माइनस आयन को लिबरेट करते हैं. एंड ऑब्वियसली बिकॉज आयंस की प्रेजेंस गुड कंडक्टर बनाती है, तो इनमें भी आयंस है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स. अब इसके एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. और बेसिस को आप कैसे पहचानोगे? जैसे एसिड्स में आगे की तरफ H लगा होता है, बेसिस में पीछे की तरफ में OH लगा होता है. लाइक यू हैव OH, OH, OH. सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये OH माइनस लिबरेट करते हैं. आपको पता है बाय साइन कन्वेंशन जब हम कोई भी सॉल्ट लिखते हैं तो सॉल्ट में फ्रंट में लिखा जाता है, जैसे ये AB है तो फ्रंट में लिखा जाता है कैटायन और बैक पे लिखा जाता है एनायन. तो क्योंकि हम यहाँ बैक वाला पार्ट ले रहे हैं तो नेगेटिव आयन, इसीलिए OH माइनस लिखा है. और यहाँ पे हम फ्रंट वाला पार्ट ले रहे हैं, यहाँ फ्रंट वाला पार्ट लिया जा रहा है एसिड्स की तरफ. दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने लिखा है H प्लस, क्योंकि फ्रंट में जो होता है वो प्लस होता है. तो आई होप आप लोगों को मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस समझ आ गया. नाउ विल बी फोकसिंग मोर ऑन एसिड्स. अब हम एसिड्स पे बात करेंगे. बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन क्लास 10th में नहीं है, बट स्टिल विल बी डिस्कसिंग फ्यू रिएक्शंस ऑफ बेसिस बट लेटर पार्ट में. सो फर्स्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट एसिड्स मोर. सो आई एम जस्ट रबिंग दिस आउट. So let's start acids. तो एसिड्स में हम सबसे पहले अब देखेंगे व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ एसिड्स. एसिड्स हम समझ गए क्या होता है. दीज आर दी केमिकल विच प्रोड्यूसेस H प्लस आयन, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, सार इन टेस्ट. सो कोरोसिव टू टच. कोरोसिव टू टच का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको हम टच करेंगे तो ड्राइनेस होगी, इवन स्किन में क्रैक्स आ जाएंगे. तो आप जानते हो एसिड्स को टच करने से इस तरह की प्रॉब्लम होती है. इवन यू नो द टॉयलेट क्लीनर्स लाइक हार्पिक एंड ऑल, दे ऑल्सो कंटेन लॉट ऑफ एसिड्स. सो एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज नेचुरली अकरिंग एसिड्स. naturally occurring acids. Other is synthetic acids, or you can say they are also called mineral acids. They are also called mineral acids. Okay. Natural occurring acids are also called non-corrosive. Non-corrosive मतलब जिनसे नुकसान नहीं होगा हमारे स्किन को. और दे आर ऑल्सो कॉल्ड ईडेबल एसिड्स. ऐसे एसिड्स जिनको आप कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फ्रूट्स में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक ऑरेंजेस एंड लेमन एंड टैमरिंड, एप्पल, विनेगर. बहुत सारी चीज़ों में एसिड्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं. आंवला, गुआवा. सो दे ऑल आर एडेबल एसिड्स. एडेबल एसिड्स. और मिनरल एसिड्स जो होते हैं दे आर वेरी कोरोसिव. कोरोसिव का मतलब काफ़ी हार्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. एंड दे आर नॉन एडेबल, और यू कैन से दे आर नॉन कंज्यूमेबल. नॉन एडेबल एसिड्स और ऑल्सो कॉल्ड नॉन कंज्यूमेबल एसिड्स. Let's talk about some natural occurring acids, like in case of orange we have lactic acid. For curd
कर्ड में भी एसिड होता है, दैट इज़ अगेन ऑरेंज हैज़ सिट्रिक एसिड, कर्ड हैज़ लैक्टिक एसिड। ये ए बार जो मैं लगाती हूँ बेटा, ये एसिड को इंडिकेट करती हूँ, ए बार मैं एसिड के लिए लिखती हूँ, ठीक है। कर्ड, देन विनेगर, विनेगर पता है आप सबको, विनेगर में होता है इथेनोइक एसिड। देन यू हैव गुआवा, ऑक्सैलिक एसिड, टैमरिंड मतलब इमली, इसमें होता है टार्टरिक एसिड। इवन टोमेटो में भी, गुआवा के अलावा टोमेटो में भी ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। एप्पल में होता है मेलेइक एसिड। तो मैं आपको जो नोट्स भेज रही हूँ, इन दैट यू कैन सी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। अब मिनरल एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं, जैसा मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग होंगे, कोरोसिव हैं, दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। ये माइल्ड होते हैं, वीक होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, और नॉन एडिबल हैं। और इन्हें मिनरल एसिड्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल। मिनरल मतलब ज़मीन से या पानी से निकाले जाते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। एग्जाम्पल में क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हमें लैब में मिलते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 is sulfuric acid, HCl is hydrochloric acid, HNO3 is nitric acid, H2CO3 is carbonic acid। ये जो एसिड होता है ये हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है। सो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ एसिड्स, natural occurring acid and mineral acid. So I hope I am clear with this.